Good morning. Welcome to DME 102, Engineering Drawing 1. And this is the last class for the projection of the straight line. So we will be doing the remaining two questions. I have got few mails to repeat question number 35. कुछ मेल्स आए थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 35 को दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया. So I am repeating question number 35 and then we will do question number 36. So after question number 35 and 36, your course up to the CT1 will be over. So CT1 में आपका जो सिलेबस है मैं रिपीट कर देता हूं, पहले भी आपको बताया था, अभी तक जितना पढ़ा है वो सब आना है. प्रिंटिंग, इंजीनियरिंग स्केल, engineering curves, projection of point and projection of lines. Okay? And in the last, I'll give you the suggestion कि आपको CT1 में क्या चीज लानी चाहिए और किस तरीके से आप उसको बेटर कर सकते हैं in 100 minutes, because आपका CT1 जो होगा वो 100 मिनट का टेस्ट है और जो कि आपको यहां पर आकर ही देना है या सेंटर पे जाकर देना है. ठीक है? All right. So question number 35 is here. Question number 35 is here. I am repeating this question. It says that the front view of a line AB makes an angle 30 degrees with XY line. Front view V means alpha is making 30 degrees with XY line. Further, it says that the HT of the line is 45 mm in front of VP while the VT is 30 mm below the HP. HT horizontal trace is 45 mm in front of VP where the VT is 30 mm below HP. And the other and the end A is 12 mm above the HP. The other end B is 105 mm in front of VP. And A is 12 mm above HP and other end B is 105 mm in front to VP. Draw the projections of the line and find out the true length inclination of the line with HP and VP. So I am repeating the question. The question says that the front view of a line AB makes an angle 30 degrees with XY line. The HT of the line is 45 mm in front of VP while the VT is 30 mm below the HP. The end A is 12 mm above the HP and other end B is 105 mm in front of the VP. Draw the projections of the line, determine true length and inclination with HP and VP. All right. So according to the given data, जो हमको दिया हुआ है डेटा, अगर इसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को बनाएं तो इसमें जो स्टार्ट विद करेंगे वो एंड ए की पोजीशन से करेंगे. एंड ए की जो पोजीशन दी हुई है वो आपको दी हुई है 12 mm above the HP. So we'll take the XY line and A is 12 mm above means A dash, क्योंकि जो डिस्टेंस आपका HP के साथ दिया होता है उसके साथ एलिवेशन का सिंबल लगता है, तो क्योंकि सिरा A 12 mm above है तो ये आपका A dash हो जाएगा. Okay. Now it says that the front view of a line is 30 mm is 30 degrees to XY line. Front view is making 30 degrees. मतलब
आपका जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री बनाता है, तो हम ए डैश से 30 डिग्री के ऊपर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका जो है एलिवेशन बना रहा है, दिस इज एलिवेशन एट 30 डिग्रीज, एलिवेशन एट 30 डिग्रीज। इस लाइन को हम यहां पर अगर हम एक्सटेंड करें तो हमको वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पर कि एलिवेशन इंटरसेक्ट करता है एक्स वाई लाइन को। अगर हम एच टी और वी टी का डेफिनेशन या उसका प्रोसेस रिवाइज करें तो हमें यह पता लग जाएगा कि वो किस तरीके से हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस लोकेट करते हैं। एक्सटेंड द एलिवेशन अप टू द पॉइंट वेयर एवर इट इंटरसेक्ट्स द एक्स वाई लाइन। तो हमने एक्सटेंशन किया एक्स वाई लाइन के तक एलिवेशन का, इस पॉइंट के ऊपर जो है इंटरसेक्ट करता है एक्स वाई को। नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन दिस पॉइंट wherever the plan is intersecting, this perpendicular is our horizontal trace. अब यहां पर हमको जो horizontal trace है वो दिया है 45 mm इन फ्रंट, 45 mm। तो अगर मैं यहां से 45 mm नीचे आ जाऊं तो मेरे को पॉइंट मिल जाता है horizontal trace HT। तो I get horizontal trace यहां मिल जाता है। अगर ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस है तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा एच डैश। ये 45 कहां से आया? बिकॉज इट इज गिवन, दिस 45 इज गिवन दैट दिस मच इन फ्रंट ऑफ वीपी। हॉरिजॉन्टल ट्रेस इज 45 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये एच डैश आ गया और ये पॉइंट आ गया आपका एच। द प्लान ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेस, द प्लान ऑफ horizontal trace is this, elevation of horizontal trace is this। अब फर्दर अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं एलिवेशन की लाइन को नीचे तक लेके आते हैं तो इसी लाइन पर हमको वर्टिकल ट्रेस मिल जाएगा। वर्टिकल ट्रेस says that wherever the plan is intersecting, wherever the plan is intersecting the xy line and then extend the elevation and the elevation intersecting the perpendicular line is our VT। तो यहां पर हमको प्लान नहीं पता बट हमें यह मालूम है कि एलिवेशन की जो लाइन है वो इतने एंगल पे इंक्लाइंड है। अब इस एंगल का जो इंक्लिनेशन है ये मेरे को डिसाइडेड है और मेरा ये डिसाइडेड है कि वर्टिकल ट्रेस जो है 30 mm है, वर्टिकल ट्रेस जो है वो 30 mm है। तो हमने यहां से वर्टिकल ट्रेस जो 30 mm है एक्स वाई लाइन से 30 mm के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये करी थी हमने 45 के ऊपर, एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी 30 mm के ऊपर। दिस इज 30 mm। तो जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट आ गया वर्टिकल ट्रेस। नाउ दिस इज अवर वर्टिकल ट्रेस, दिस पॉइंट इज अवर वर्टिकल ट्रेस। मैं इसको रिपीट कर देता हूं। अभी हमने एलिवेशन को एक्सटेंड किया और 30 mm जो दिया हुआ है 30 mm बिलो द एचपी लाइन ले ली, जहां पर भी 30 mm की लाइन ने 30 डिग्रीज की लाइन को इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट हो गया वर्टिकल ट्रेस, वो पॉइंट हो गया वर्टिकल ट्रेस। लेट मी टेक दिस डिस्टेंस ऑन लेफ्ट साइड जिससे कि आपको बीच में कुछ भी लाइन कंफ्यूज ना करे। तो इफ दिस इज द वर्टिकल ट्रेस तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप करूं तो यहां पर आपका एक्स वाई लाइन के ऊपर आ जाता है V और यहां पर आपका आ जाएगा V डैश। तो व्हाट इज V एंड V डैश? V इज द प्लान ऑफ वर्टिकल ट्रेस and V dash is the elevation of vertical trace. These are the points V and V dash. Okay. अब हमारे पास V पता है, H पता है। These are the plans of vertical trace and horizontal trace. तो अगर मैं इसको यहां पर ज्वाइन कर दूं तो ये हमारी प्लान की लाइन है। This is the line for the plan of AB. V और H को एक्सटेंड करता जाऊं तो ये लाइन को ज्वाइन करके तो ये हमारा लाइन है प्लान का। जैसे कि हमारा ये लाइन है एलिवेशन का, ये लाइन हो गया प्लान का। ऑलराइट, नाउ यू सी ए डैश
ए डैश अगर यहां पर है तो इसका मतलब इसी की लाइन में हमारा ए आना चाहिए। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता जाऊं तो प्लान की लाइन पे जाकर जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आ जाएगा आपका पॉइंट ए। नाउ दिस पॉइंट इज योर ए, द प्लान ऑफ XY line, the plan of XY AB line एंड ए का आपका प्लान आ गया, और एलिवेशन एंड ए का ये आ गया ए डैश। क्या किया है हमने, प्लान वर्टिकल ट्रेस और हॉरिजॉन्टल ट्रेस का जो है मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करी है। ये जो लाइन डिसीजन हो गया कि इसका इंक्लिनेशन फिक्स हो गया, दिस इज बीटा, ये है। तो अगर हमारी ये है तो जहां पर ए डैश अगर यहां कर रहा है तो इसी की लाइन में हमारा प्लान आना ही चाहिए एंड ए का। तो उसको एक्सटेंड किया तो इंटरसेक्शन ऑफ प्लान लाइन एंड द प्रोजेक्टर ऑफ द एलिवेशन लाइन विल गिव यू द प्लान। ओके, फर्दर इट सेज दैट एंड बी इज 105 mm in front of VP and B is 105 mm in front of VP। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो एंड बी है वो 105 mm नीचे है, इन फ्रंट मींस नीचे। तो अब यहां से XY से 105 mm का डिस्टेंस लेके एक लाइन ड्रॉ करिए, तो जहां पर भी आपका ये इंटरसेक्शन आएगा वो आपका सिरा आ जाएगा बी, दिस विल बी योर एंड बी। क्या किया हमने, XY से 105 mm के लाइन लिया, इस लाइन ने जहां पर भी प्लान की लाइन को कट किया वो एंड आ गया एंड बी। ओके, अब अगर ये आपका एंड बी है, अगर ये आपका एंड बी है तो इससे अगर मैं प्रोजेक्टर लेता हूं और स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करता हूं, वर्टिकल लाइन, तो जहां पर भी एलिवेशन की लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो आ जाएगा बी डैश। जहां पर भी कट करेगी आपकी बी से ड्रॉ करी हुई लाइन, बी इज अ प्लान, इससे प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हुए जब मैंने लाइन ड्रॉ करी, हमारी जो एलिवेशन की लाइन है वो इस इंक्लिनेशन पे है, जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेगी वो आ गया आपका एंड बी। सो नाउ दिस इज A dash, B dash, final elevation of line AB, and this is final plan of and AB. This angle is beta, while this angle is alpha. This is given, and this much you can measure and you can write down in the table. अब यहां पर आपको ये मिल गया एलिवेशन लेंथ और ये मिल गया प्लान लेंथ। अगर हम टेबल देखें तो टेबल के हिसाब से हमको क्या क्या मिल सकता है और क्या निकालना है वो भी क्लियर हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू लेंथ अभी निकालनी है, प्लान लेंथ, एलिवेशन लेंथ, थीटा, पाई, अल्फा, बीटा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस। दीज आर द 9 थिंग्स। अब यहां से शुरू करते हैं ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ कैसे निकालते हैं, इफ द एलिवेशन इज पैरेलल टू XY लाइन, मेक इट पैरेलल, देन प्लान विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो यहां से अब प्रोजेक्टर अगर मैं लूं, जहां पर भी बी वाली लाइन को ये लोकस को कट करेगा वो आ जाए आपका B1। तो अगर मैं A को B1 से मिला देता हूं, so this is the true length in plan. This is the true length in plan. What is AB? This is plan of line AB. What is AB1? This is true length of line AB. अगर ये true length line AB का प्लान में है तो इसका मतलब ये एंगल मेरे को 5 डिग्रीज मिल जाएगा। If this is the true length in plan AB1, then this angle will be 5, which is a real angle which line makes with VP and always drawn with plan. This is the condition. Okay. Now, if you will make plan parallel to XY line, अब क्या किया, पहले एलिवेशन को पैरेलल किया था, अब मैं अगर प्लान को पैरेलल करता हूं XY लाइन के,
तो आपका जो सिरा बी डैश है, जो आपका सिरा बी डैश है, वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा। और जब ये यहां से अगर मैं 105 केवल ये एक डिस्टेंस लिया था, तो इसको मैं यहां से रिमूव करके थोड़ा अलग से भी ड्रॉ कर सकते, बिकॉज दिस इज ओनली अ डायमेंशन लाइन। यहां पर हमारे प्रोजेक्शन लाइन को इंटरसेक्ट कर रही थी ये, तो इसलिए रिमूव कर दिया। तो ये पैरेलल किया और यहां से अब मैंने प्रोजेक्टर ड्रॉ किया। इस प्रोजेक्टर ने जहां पर भी पी डैश वाले लोकस वाले पॉइंट को कट किया, आई कैन राइट डाउन आइदर B1 डैश, B0 डैश, एनी नेम, बिकॉज दिस इज जस्ट अ नेम। कोई जरूरी नहीं है कि ये B1 डैश ही हो, B0 डैश भी हो सकता है। ओके, नाउ आई कैन ज्वाइन A डैश विद B0 डैश। तो अभी ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया ट्रू लेंथ इन एलिवेशन। ट्रू लेंथ इन एलिवेशन, जैसे A B1 is the true length in plan, so A dash B0 dash is the true length in elevation. So this angle is with theta, will be denoted by theta. Why? Because the true length of the line is making angle with HP and drawn with elevation always. तो ये एंगल आपका थीटा आ गया। अब यहां पर अगर हम टेबल पे देखें तो हमारा ट्रू लेंथ कोई भी एक, ये और ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ये और ये बराबर होनी चाहिए, मेजर करके लिख सकते हैं। प्लान लेंथ इज ए बी, एलिवेशन इज ए डैश बी डैश, थीटा यू कैन मेजर दिस, ए डैश बी जीरो डैश के इंक्लिनेशन विद 0 0 means xy, that will give you theta degrees. A B1 line inclination with 0 0 will give you phi. Alpha is the angle which is given in the, जो कि elevation बना रहा है xy line के, this is 30 degrees. Is the angle what plan is making, what plan is making with xy, ये measure करके आप लिख सकते हैं। Already given, HT is 45 mm in front of VP, and VT is already been given, that is 30 mm below the HP. So according to the table, all the dimensions are filled, means the projection is complete. अब आता है लाइन वर्क। लाइन वर्क में हमारा जो फाइनल प्लान एंड एलिवेशन है उसको थिक कर देते हैं विद द, एंड रिमेनिंग आपके जो कंस्ट्रक्शंस हैं, लाइन वर्क है with 2H grade pencil, thin lines. This is H grade pencil, thick line. And XY line is a medium thickness line. That is a reference line. H grade pencil से आप draw कर सकते हैं। Even if you want कि आपका, क्योंकि true length निकाला है तो ये result नहीं है, इसमें पूछा गया है कितना है, बस आपने मेजर करके, बिकॉज प्रोजेक्शंस में जो फाइनल प्रोजेक्शन आता है केवल वही थिक करते हैं। एज पर द रूल्स ऑफ द ऑर्थोग्राफिक वी हैव टू मेक द प्लान एंड एलिवेशन थिक, वी हैव टू मेक प्लान एंड एलिवेशन थिक। ओके, तो इसलिए केवल ए डैश बी डैश और ए बी को थिक करना है, थिकनेस बढ़ाना है। दिस इज नॉट अ डार्क लाइन, वी आर सेइंग दैट इट इज अ थिक लाइन। What is the difference between thick line and thin line? So this is a thin line. If you see, this is a thin line. And with respect to this thin line is a thick line. Okay? This is a thin line, a thin line. And this is a thick line. If this is 0.5 mm, then this should be 0.2
mm. And the medium line, so what is that? Means the dot line that is 0.3. You cannot measure it, although you can make it because different thickness pencil leads are available in the market. अगर आप यूज करेंगे तो 0.5 थिकनेस की, 0.1 थिकनेस की, 0.2 थिकनेस की, 1 mm की लेड्स आती हैं, पेंसिल लेड्स आती हैं, तो वो आपका जो है थिकनेस वेरी कर सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि उसका जो मैक्सिमम थिकनेस है वो ये है। अगर हमको तब भी थिकनेस बढ़ानी है इसके बाद भी, देन वी कैन रिपीट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ लाइन। सो इन दिस वी कैन इंक्रीज द थिकनेस लाइक दिस। अगर एक बार एक लाइन ड्रॉ करी, फिर थोड़ा सा आगे करा, फिर एक जैसा किया, so you are increasing the thickness of the line, increasing the thickness of the line. Okay, this was related to line work. Now question number 36. Question number 36. Question number 36 is a line PQ is in first quadrant. First of all, given is first quadrant means above and front. Then end P and Q are 15 mm and 45 mm in front. P is 15 mm in front, Q is 45 mm in front. P is 50 mm in front and Q is 45 mm in front of VP. Then the distance between the end projectors is 55 mm. Distance between end projectors means between PP dash and QQ dash is 55 mm. दो सिरों के प्रोजेक्टर्स के बीच की जो दूरी है वो 55 mm दी हुई है. The line is inclined at 30 degrees to HP. Theta is given 30 degrees. Line is inclined at 30 degree means this is a real angle. इसका मतलब ये एलिवेशन के संग बनेगा. जहां पर भी हमको एलिवेशन मिलेगा उसके साथ ही बन सकता है. ठीक है? Is 30 degrees. The HT is 8 mm. Horizontal trace HT is 8 mm above XY line. Draw the projections of the line PQ, find true length and inclination, and also locate VT, vertical trace. So I'm repeating the question in a whole. A line PQ is in first quadrant, and P and Q are 50 mm and 45 mm in front of VP respectively. The distance between the end projectors is 55 mm. Line is inclined at 30 degrees to HP and its HT is 8 mm above the XY line. Draw the projections, determine the true length and inclinations, and also locate the vertical trace. So this is the question. Now we will start this question. We will start this question from the point P is 15 mm in front, Q is 45 mm in front, and the distance between end projectors is 55 mm. ये तीन चीजें हमको दी हुई हैं, तो इसको अगर हम बनाना शुरू करेंगे तो पहला जो पॉइंट होगा हमारा XY line, the medium thickness line. Suppose point P is here,
15 mm in front. In front means below xy and it will be end P. P लिख देंगे यहां पर, प्लान ऑफ एंड P, सिर्फ P का प्लान आ गया। अब इससे Q जो है वो 55 mm की दूरी पे है। यहां से 55 mm की दूरी लेकर जो सिरा Q है, एंड Q इज 45 mm in front, 45 mm in front. So this will be end Q. This will be end Q. Okay. Now this is P, this is Q. If I join P and Q, then I'm getting प्लान। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मेरे को क्या मिल गया? प्लान मिल गया। किसका? लाइन पी क्यू का। ओके, लाइन पी क्यू का आपका प्लान मिल गया। अब अगर मैं इस प्लान को आगे एक्सटेंड करता हूं तो जहां पर भी ये एक्स वाई लाइन को कट करेगा उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर एलिवेशन आएगा, वो क्या देगा? वर्टिकल ट्रेस। दैट विल गिव द वर्टिकल ट्रेस। तो इस पॉइंट पर हमारा जो ये आया है वर्टिकल आया है, इस पे हमारा वर्टिकल ट्रेस आएगा। बट हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस इज 8 mm अबव XY। तो अगर मैं XY से 8 mm की डिस्टेंस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूं, दिस इज 8 mm, लाइन ड्रॉ करूं और ये जो लाइन है जहां पर भी PQ को इंटरसेक्ट करता है वो आ गया आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस। करेक्ट? दिस पॉइंट इज अवर हॉरिजॉन्टल ट्रेस। क्या किया? XY से 8 mm का डिस्टेंस लेके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और जो इंक्लिनेशन लाइन आ रही है हमारी प्लान की, उसने जहां पर भी इंटरसेक्ट किया वो हो गया हॉरिजॉन्टल ट्रेस। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं यहां तो ये पॉइंट आ जाएगा H डैश। Now this is the elevation of horizontal trace, elevation of horizontal trace, and this point is the plan, means H of horizontal trace, HT. Why the elevation is required? क्यों हमको यहां पर एलिवेशन चाहिए था? क्योंकि इससे पहले मेरे पास सब प्लान थे, P, Q, अगर VT भी आता ये तो यहां पर भी ये V आता, नॉट V डैश। करेक्ट? तो एलिवेशन हमको इसलिए चाहिए क्योंकि एंगल इज गिवन दैट द लाइन इज मेकिंग 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्रीज अगर हमको थीटा दिया हुआ तो केवल एलिवेशन के संग ही बन सकता था वो। नाउ यू कैन टेक 30 डिग्रीज लाइन एट H डैश। डोंट थिंक लाइक दिस दैट द line the angle will be made only with P or only with Q. It says that the line is inclined at 30 degrees. लाइन लंबी हो सकती है, उसमें से एक छोटा सा सेक्टर है हमारा PQ जिसका हम लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट लाइन कैन बी ऑफ एनी लेंथ एंड इट कैन बी ऑफ एनी एंड PQ कैन बी अ सेगमेंट ऑफ दैट लॉन्ग लाइन। ओके, तो H डैश से हमने 30 डिग्री का लाइन लिया और एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर दिया, 30 डिग्रीज लाइन। So this is our theta. This is our theta. Correct? अब हमारे पास जो अवेलेबल है इस टाइम पे वो ये है कि H डैश ये रहा, इससे हमने लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि हमारी ट्रू लेंथ निकालेगी, जो कि हमारी ट्रू लेंथ निकालेगी। ओके, अब हमारे पास जो अवेलेबल हैं डेटाज उसके हिसाब से हमने सभी यूज कर लिए। एंड P इज 15 mm इन फ्रंट यूज्ड, Q इज 45 mm इन फ्रंट यूज्ड, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर इज 55, उसके ही हेल्प से हमने PQ निकाला था। लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू HP, मींस हमने उसको जो है H डैश के संग 30 डिग्रीज बना दिया। एंड द HT इज 8 mm XY लाइन, और H डैश हमारा जो आया वो 8 mm लेने के बाद ही आया। इतना अब हमारे पास हो गया। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको इसका ट्रू लेंथ निकालना है, इसका एलिवेशन निकालना है, इसका प्लान निकालना है, सब निकालना है। तो व्हाट इज द कंडीशन? अगर हम यहां पर देखें इस सवाल में, दिस इज H डैश, करेक्ट, दिस इज पॉइंट V। अगर मैं इसको ऊपर
मतलब आपका ये ट्रू लेंथ है. नाउ दिस इज नॉट द फाइनल एलिवेशन, दिस इज नॉट द फाइनल एलिवेशन कि आपने इसको यहां से किया और यहां पर आ गया आपका P डैश और यहां पर आपका आ गया Q डैश. नो, अब यहां पे क्या करना होगा, अगर मैं इसको पैरेलल करता हूं, प्लान, इफ प्लान इज पैरेलल टू XY लाइन, if plan is parallel to XY line, plan is parallel to XY line, plan of what, horizontal trace H से लेकर Q तक का, this is the plan, HQ is parallel to XY line, then elevation will be a true length, it will be a true length. Okay, तो यहां से मैंने इसको पैरेलल किया, दिस लाइन रोटेट करके इसको XY लाइन के पैरेलल आया, तो मैं जब यहां से प्रोजेक्ट करके ले जाऊंगा, जहां पर भी ये 30 डिग्री की लाइन कट होगी, देन दिस पॉइंट विल बी योर, से दूसरा सिरा हमारे पास है Q0 डैश, कैपिटल Q0 डैश. So what is H dash Q0 dash? This is the true length in elevation of, from the point of horizontal trace and Q. Okay? अब हमारे को क्या चाहिए, अगर हमारा ये Q0 dash है, if this is Q0 dash means इसकी लाइन में ही कहीं पर Q dash means the elevation will be line. अगर ये Q0 डैश है तो इसकी लाइन में ही कहीं Q डैश आना चाहिए. ड्रॉ Q, अ प्रोजेक्टर फ्रॉम Q, जो इंटरसेक्शन आएगा वो आपका जो पॉइंट आ गया वो आ गया स्मॉल Q डैश. सो द एलिवेशन ऑफ Q डैश. ओके, ये क्या आया था हमारा Q0 डैश. इससे हमको ये पता लग गया कि इसकी लाइन में ही कहीं पर Q डैश आएगा. Q से हमने एक प्रोजेक्टर ड्रॉ किया वर्टिकल लाइन, और जहां पर भी इस लाइन को इंटरसेक्ट किया वो हो गया Q डैश. नाउ यू कैन ज्वाइन H डैश विद Q डैश, H डैश विद Q डैश. तो आपका जो सिरा आ गया H डैश एंड Q डैश, ये हो गया प्लान लाइन. अगर हमारी ये प्लान लाइन है तो अगर को मैं elevation line, I'm sorry, H dash and Q dash is the elevation line. अगर अब मैं P को यहां से प्रोजेक्ट करता हूं तो यहां पर आ जाता है हमारा P dash. I repeat, प्लान को पैरेलल किया, एलिवेशन में ट्रू लेंथ आया, Q0 डैश से लाइन ड्रॉ किया, Q से फिर जब प्रोजेक्ट किया तो हमको Q डैश मिल गया, Q डैश को H डैश से मिलाया तो ये एलिवेशन लाइन आ गया. एलिवेशन लाइन के ऊपर हमने जब पॉइंट P मींस प्लान से प्रोजेक्ट किया तो वो P डैश आ गया, ये पॉइंट आपका P डैश आ गया. तो P डैश Q डैश इज द एलिवेशन ऑफ द लाइन, PQ is the plan of the line. Now the true length. True length हमको किसकी चाहिए, PQ की चाहिए, है ना. PQ की हमको चाहिए कि इस सेक्टर की कितनी है. ओके, सो नाउ इफ यू सी, अगर P डैश ये है तो इसकी लाइन में ही अगर मैं इसको स्ट्रेट ले जाऊं तो ये आ जाएगा P0 डैश, P0 डैश. तो आपका जो डिस्टेंस आ गया P0 डैश एंड Q0 डैश, यहां से लेकर यहां तक, ये आ गया आपका ट्रू लेंथ. नाउ दिस इज योर ट्रू लेंथ. ऐसे ही अगर आप इस ट्रू लेंथ प्लान में निकालना चाहते हैं तो P डैश Q डैश को पैरेलल कर दीजिए, तो आपका यहां से प्रोजेक्शन आएगा और ये आ जाएगा Q, कैपिटल Q1 कर दीजिए. उसको अगर हम P से मिलाएंगे तो ये आपका जो डिस्टेंस आ जाएगा ये ट्रू लेंथ आ जाएगा इन प्लान. लेट मी मेक इट क्लियर. एलिवेशन को पैरेलल किया,
जो पैरेलल लाइन आया उससे हमने एक प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, तो हमारा जो सिरा Q है वो स्ट्रेट लाइन में मूव किया। जहां इंटरसेक्शन हुआ उस पॉइंट को हमने कह दिया Q1। उस पॉइंट को P से जब ज्वाइन करेंगे, उस पॉइंट को जब हम P से ज्वाइन करेंगे, तो ये जो लेंथ आई आपकी, ये आ गई ट्रू लेंथ इन प्लान। आपका जो एंगल है यहां पर आप मेजर कर सकते हैं, दिस इज योर फाई, एंगल फाई। ओके, अब यहां पर आपका जो VT है, प्लान को एक्सटेंड किया, जिस पॉइंट पर इसने एक्स वाई लाइन को इंटरसेक्ट किया वहां से प्रोजेक्टर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उस परपेंडिकुलर लाइन ने जहां एलिवेशन लाइन को कट किया, तो दिस पॉइंट इज वर्टिकल ट्रेस। So this point is V and this is V dash। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा ये कि what is happening। Plan is intersecting XY line on this point. Draw a perpendicular on this point. This perpendicular line is intersecting elevation Q dash H dash at this point. So this is your vertical trace. So if this is the vertical trace, then this is the plan of the vertical trace V, and the point which is vertical trace is the V dash, means elevation of vertical trace। तो आपका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे ये इतना मेजर करके आप लिख देंगे VT is this much above the XY line। VT is this much above the XY line। Now you can make a table, और उस टेबल पे आप ये देख लीजिए कि आपको जितने भी 9 चीजें हैं वो आपकी निकल आई हैं या अभी कुछ रह गया उसमें। वन बाय वन। फर्स्ट इज ट्रू लेंथ, आपने निकाल लिया है, चाहे वो एलिवेशन का हो चाहे प्लान का हो। जरूरी ये है कि दोनों की लेंथ बराबर होगी। एलिवेशन लेंथ P dash Q dash, plan length PQ, theta already given 30 degrees, phi यहां पे निकाल लिया था हमने। Alpha you can measure, alpha means H dash Q dash line, this is alpha। Beta you can measure V and Q, so this is beta। VQ means the elevation plan making angle with XY। Then horizontal trace given 8 mm, vertical trace you can measure this and this much above XY line। So now all the 9 things are here in the table। अगर ये कंप्लीट हो गया तो हमारा प्रोजेक्शंस का जो सवाल है स्ट्रेट लाइन का वो पूरा हो जाता है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 36। तो योर शीट नंबर 4B, शीट नंबर 4B इज कंप्लीट नाउ। आप जो शीट नंबर 4A एंड B से मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन की आपकी 2 शीट्स बन रही हैं जिसके ऊपर आपने ये काम करना है, और उसको अगर काम जरूरत पड़ती है, जगह कम है एक शीट पे, तब हमने दूसरी पे बनाना है। ऑलराइट, नाउ एन एडवाइजरी फॉर CT1, आप A4 साइज का जो फाइल पेपर आता है, A4 साइज का जो फाइल पेपर है जो थिक होता है, जिसके ऊपर जो है आप ड्राइंग बना सकें, वो ले लीजिएगा। 3-4 पेज ले लीजिएगा, जिससे कि आप आगे पीछे भी यूज हो जाएंगे। इसको आपने
नोटपैड के ऊपर लगाना है, फिक्स करना है, क्योंकि आपको जब काम करना है चेयर पे बैठ कर करना है तो आपके नीचे हार्ड वो होना चाहिए, उस पे रख के आपने इस पे बनाना है विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर्स। अगर आप बड़ा सेट स्क्वायर लेके आएंगे तो वो इस पेपर के हिसाब से बड़ा हो जाएगा। सो व्हाट इज माय सजेशन इज यू कैन टेक द स्मॉलर सेट स्क्वायर सेट, छोटा वाला सेट स्क्वायर सेट जो आता है ज्योमेट्रिकल बॉक्स का, जो कि हम लोग रेखा गणित ज्योमेट्री करने के लिए 6, 7, 8, 9, 10th क्लास में यूज करते थे, वो ज्योमेट्रिकल बॉक्स का जो छोटे सेट स्क्वायर्स हैं वो आप ला सकते हैं। दैट विल बी एडवाइजेबल। अगर आप बड़ा लेके आते हैं तो उससे भी काम हो जाएगा, थोड़े बड़े हैं, उसको एडजस्ट करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, बट जो स्मॉलर वन है दोज विल बी बेटर। ओके, देन आई विल सजेस्ट कि आपके पास जो पेंसिल है H2H एंड 3H ग्रेड की पेंसिल पहले ही शार्प करके लेके आए, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। अगर एक की जगह आप दो भी रख लेते हैं कोई हर्जा नहीं है उसमें। जो ज्यादा जरूरत है वो हमारी H ग्रेड एंड 2H ग्रेड पेंसिल की है। HB ग्रेड से हम केवल प्रिंटिंग करते हैं, जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। इरेजर आप रख लीजिए, सॉफ्ट इरेजर, पेंसिल इरेजर, and then the sharpener should be there. And what else? To fix the sheet, you can take the clips. आपने क्लिप ले लीजिए जिससे कि शीट फिक्स हो जाए, हिले नहीं आपके उस पे राइटिंग पैड के ऊपर। और अदरवाइज इफ यू वांट यू कैन टेक द सेलोफेन टेप, आपका जो चिपकाने का टेप आता है वो भी लेकर आप काम कर सकते हैं। So this is what is my advisory, and I'll just say that this will help you and this will save your time in solving the question. आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा सारे सीटीज की तरह 100 मिनट का होगा। आपने वो बना के उसका पीडीएफ बनाना होगा और उसको जो है पीडीएफ सेव करके जो बताई गई आपकी मेल आईडी होगी आपके सेंटर की, वहां पर आपको सेंड करना होगा और वेरीफाई कराना होगा। तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर द क्लास टेस्ट, राइट? तो थैंक यू वेरी मच।